Hello students. So today here I am going to make wooden mural, and for that you require waste material, which is wooden piece. Any shape whatever you will get, you will collect and keep with you. Okay, so that when you will make, you can assemble these all wooden pieces and make your own mural. Okay, so see, I have these different sizes wooden pieces. Even this I can use. So whatever shapes you will get, you will collect with you. Okay, with that we will make our mural. Okay, and now for that we require, even I have this type of wooden piece. Okay, so whatever material is with you, try to use that only. No need to buy anything. Fevicol we required for that. Then POP powder, which is easily available in hardware shop, that you will bring, and with that you will make your mural. I will give you some ideas. Okay, so according to that you will collect your material, keep with you, and in next video I will show you how to color it. Okay, so this topic is divided in two videos. So you start in this video, and in next video you are going to color it. So let's start. See, even I have many collection, so maybe you don't have that, it's okay. Whatever you have, you will use it. Okay, but collection should be there with you. Let's start. First I will show you which murals already I have, which I made out of waste only. Okay, see, this is mural. I got these wooden pieces, with that I made. Okay, so you will get idea that what material you can use. No compulsion for any material, but collection box and basic colors you have to keep ready with you. Okay, I was having these hooks, that's why I used it for key hanging. Okay, so it's not compulsory, you can make just showpiece. See, here is one. I got these two wooden pieces, with that I made this design. Means you will get idea that with the waste material how to make one nice piece, how to design for this piece. Okay, see, when work was going on in my house, with waste POP sand, I made this face and I use it on this. Yes, students, I want to tell you, art is creativity. Okay, there is no compulsion. Whatever you will create, that is art. So enjoy art. Don't complete your work for submission. Okay, that time I made many this type of faces, and afterwards I used it in my mural. So very simple way it is made, but it's looking very nice. See, and on that I applied fabric colors. With this only you will get idea how you can do it. See, here I used texture. I made texture out of POP and Fevicol, that I am going to teach you. Okay, so see, this is also made, and even not compulsion how much big size and all, you can make any size. This is very small, क्यूट सा छोटा सा एक वुडन म्यूरल है. कुछ कंपल्शन नहीं है कि इतना बड़ा साइज होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए. आप प्लीज़ आपके क्लास टीचर को कुछ न पूछिए, क्योंकि ये वीडियो में ऑलरेडी मैंने सब एक्सप्लेन किया है, तो डाउट्स नहीं होने चाहिए. कुछ भी कंपल्शन नहीं है, लेकिन जो आर्ट आप बनाएंगे फाइनली वो
आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, आप हैप्पी होने चाहिए वो आर्ट बना के। आर्ट का मीनिंग ही वो है, आर्ट पीरियड का मीनिंग क्या है, 10th स्टैंडर्ड में भी आर्ट है, क्यों, रिलैक्सेशन के लिए। सो ये कुछ कंपल्शन का ये नहीं है कि आपको कंपलसरी ऐसे ही करना चाहिए, यही साइज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ओके, सो जो भी मटेरियल है उसके साथ आप आपकी क्रिएटिविटी डेवलप करिए, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अब मुझे बहुत जल्दी करनी नहीं है आपके ऊपर, मुझे प्रेशर नहीं डालना है, मैं सिर्फ ये वीडियो में बताना चाहती हूँ, मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि यूज़ वेस्ट मटेरियल, राइट। उसका मतलब ही यही है। आप बोलेंगे मिस तो बोलती है वेस्ट मटेरियल बट शी यूज्ड ऑल दिस थिंग्स, नो, सी आई इवन यूज ऑल वेस्ट मटेरियल। दिस पीस आई गॉट फ्रॉम कारपेंटर, ओके, दिस पीस आई गॉट समवेयर। ऐसे भी नहीं कि एक साथ मुझे मिला है, जैसे जहाँ से मिला मैंने मेरे पास कलेक्ट करके रखा और उसके बाद मैंने ये असेंबल किया है। ओके, फिर उसको यहाँ पे हुक दिया तो इसका यूज़ हो गया, बराबर। हम कोई भी आर्टिकल यूज़फुल बनाते हैं तो और वो अच्छा है। अब मैं आपको बताऊंगी टेक्सचर जो मैंने किए हैं और मैं आपको अभी सिखाऊंगी भी। ओके, ये देखिए मेरे पास पीओपी का जो काम चल रहा था उसमें से ये पीओपी का पीस मैंने रख दिया और उसके ऊपर मैंने ये पीओपी शीट के ऊपर पीओपी से टेक्सचर बना दिया। अब मैं वो टेक्सचर भी आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। लेकिन देखो कितना सिंपल है और कलरिंग के बाद कितना सुंदर दिखता है, मैं अभी बताऊंगी आपको। जो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, जो बहुत इंटरेस्टेड बच्चे हैं, दे कैन डू लाइक दैट। ओके, सो आई विल शो यू वन हेवी पीस, सी दिस वन। हियर आई यूज सेम थिंग, वुडन वेस्ट स्टिक। ओके, ये सब वेस्ट है जो मुझे मिले, मैंने कलेक्ट करके रखे थे। ये भी एक वेस्ट पीस है और उसके ऊपर मैंने पीओपी से टेक्सचर किया है। अब जिनको कोन बनाना आता है वो कोन बना के भी कर सकते हैं काम, जो मैंने ये कोन वर्क किया है, बराबर। जिनको कोन नहीं आता है वो सिंपल ऐसे टेक्सचर बनाएंगे जैसे मैं अभी दिखा दूंगी, ठीक है। तो उससे भी कितना सुंदर ये पीस बन रहा है, देखो इसका कलरिंग बाकी है लेकिन कितना सुंदर बन सकता है, आपको आइडिया आएगी। ओके, तो कुछ भी कंपल्शन नहीं है, आपको पीओपी टेक्सचर नहीं करना है तो सिर्फ वुडन के पीसेस आप एक साथ लेके कर सकते हैं। ओके, ये मैंने कोन वर्क किया हुआ है, जो किया है कैनवास पे, वुडन बेस पे कैनवास जो लगाया है उसके ऊपर मैंने किया। ये मेरे पास वेस्ट कैनवास था, बिगड़ा हुआ कुछ पेंटिंग था तो उसको मैंने ऐसे यूज़ किया, ठीक है। अब इसको कलरिंग करेंगे गोल्डन से, थोड़ा टच देंगे होगा तो कितना सुंदर दिखेगा। तो इस तरीके से ही आपको करना है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि वुडन पे टेक्सचर कैसे करते हैं। मेकिंग आज हम कर लेंगे क्योंकि ड्राई के लिए टाइम जाएगा, तो हम वो कलरिंग बाद में करेंगे। अब मेरे पास ये एक पीस है जिसको मैंने जो वर्क किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ठीक है। ये है पेडीलाइट का शिल्पकार जो है ना, वो मेरे पास था, उससे मैंने ये बनाए हुए हैं। ओके, मैं वो आपको बना के दिखा दूँगी। तो अगर इजीली आपको ये मिलता है तो उससे आप ये बना सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ मेथड सिखाऊंगी, तो मेथड से आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे मेथड से आप यहाँ तक इतना डीप वर्क कर सकते हो, इतना डिटेलिंग कर सकते हो, ये मैंने बना के रखा था। ओके, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है आर्ट में वो थोड़ा और क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, जो मैंने मेथड बताई उससे। अब ये मेथड क्या है बताती हूँ मैं। ये थोड़ा मेरे पास ना ड्राई हुआ है तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इससे ही मैं कुछ बनाना चाहती हूँ। तो मैंने इसको शेप दे दिया राउंड 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 करके। ओके, इसके मैं कुछ शेप्स बना के रखूँगी क्योंकि ये मुझे वेस्ट नहीं करना है, इससे ही मैं कुछ शेप्स बना के रखूँगी, ये सूखने के बाद मुझे यूज़ आएंगे। अब देखो आप, कोई भी चीज़ वेस्ट से ही हम कितनी सुंदर कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा, इसको
आप कॉइल्स बना के भी ऐसे वाला यूज़ कर सकते हैं, और बीड्स बना सकते हैं ऐसे अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के बटन्स बना सकते हैं। ओके, सो मैंने अभी यहाँ पे ये शेप क्रिएट किया है। इसके सेंटर में मैं एक होल करूँगी। ओके, अब आपको लगता है और कुछ कर सकते हैं तो साइड में डिज़ाइंस, मैं यहाँ पे इसको सराउंडिंग में पूरा डिज़ाइन कर दूँगी, और फिर ये सूखने के बाद हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते। थोड़ा सा सिर्फ मटेरियल भी देखो, टूल्स मेरे पास कुछ स्पेशल टूल्स नहीं है, मैं ये सर्कुलर ही यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो ये मेरा एक सुंदर डेकोरेटिव बटन रेडी है। यह मैं कहीं पे भी बाद में यूज़ कर सकती हूँ डिज़ाइन पैटर्न्स। तो ये भी है क्ले, इसको आप कॉइल्स बना सकते हैं ऐसे डेकोरेशन के लिए, नहीं तो फिर अब तो मैं बटन ही बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा मेरा ये सूख गया है और हार्ड बन गया है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती इसमें मैं, लेकिन वेस्ट होने से अच्छा है ना कुछ तो बना के रखूँ। तो इसको हम सेम टाइप के 3 बनाती हूँ मैं, तो मैं कहीं पे एक जगह पे वो यूज़ कर सकती हूँ। फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। इसको मैंने बीच में होल किया ब्रश के बैक से। ओके, और फिर सब जगह से राउंड राउंड उसको टेक्सचर बना दिया। क्लास टीचर्स को आप पूछते हो, उनको आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और मैं वीडियो में इतना क्लियरली सब बता रही हूँ कि आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो फाइनल पेज सबमिट करोगे, तो अगर आपने रियली उसमें इंटरेस्ट लिया है, आपने एंजॉय किया है, तो वो सबमिशन अच्छा ही होगा। ओके, ये देखिए। सो इस तरीके से मैं बटन्स बना के रखती हूँ जो मुझे बाद में काम आएंगे। इतने सारे वीडियोस हो गए हैं, आपको उसमें से सिर्फ 2 मेमोरी 2 डिज़ाइन ऐसा कुछ दिया है सबमिशन के लिए, बराबर उतने ही आपको करने हैं। उसमें भी कितने सारे डाउट्स आप पूछ रहे हैं। आप एंजॉय करो, आर्ट को एंजॉय करो, डाउट्स नहीं आएंगे। जब आपका फाइनल ड्राइंग अच्छा होगा तो आपको पहले उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। I know you are in 10th standard, but you are at home students. You must enjoy your टाइम, जो भी आपको खाली टाइम मिलता है आप उसको एंजॉय करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी इसको टेक्सचर किया। मैं बोलती हूँ, जो बोलते हैं हमारा ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो ये जो टॉपिक्स है वो लोग भी अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए कुछ खास ड्राइंग होने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है। इतने सारी वीडियो से आप वीडियो एटलीस्ट इजीली जितने पॉसिबल है उतने तो करो, एंजॉय करो। पूरा दिन थोड़े हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास अभी 3 ये रेडी है। ये मैं कहीं पे भी लगा सकती हूँ ना, ये देखो, ये वुडन पीस पे लगा सकती हूँ, है ना, ये सिंपल है। और ये वाला मैंने बनाया वो हम बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे मटेरियल आपको रेडी रखना है हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप इतना तक रेडी रखिए, फिर कलरिंग पार्ट हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। Okay students, so here we are going to start our coloring part. Okay, this is your ready wooden mural. If you have more pieces you can assemble. I'll just give you idea. अगर बड़ा पीस है तो उसको आप इसके साथ रख के ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे आप पेंटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम पीओपी का लिया था
ऐसे, बराबर। ये साइड हो सकता है, मेरे पास पीओपी का शीट था तो उसमें मैंने ये किया था। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये बहुत हेवी भी हो जाएगा, हेवी वर्क हो जाएगा, बराबर। वो डिपेंड है आपका इंटरेस्ट, आप कैसे करना चाहते हो इसके ऊपर। मैं तो आपको छोटा सा भी करेंगे और अच्छा करेंगे इंटरेस्ट लेके तो उसको भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। लेकिन आपको अगर सच में क्रिएटिविटी डेवलप करनी है तो आप थोड़ा अच्छा काम करो। टाइम भी है हमारे पास, बहुत टाइम है अभी, बराबर। हमारे पास इतना सारा टाइम है, हम गेम और वीडियोस या इसमें वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कुछ क्रिएटिव करें, बराबर। तो आज हम कलरिंग करेंगे। ये लास्ट टाइम का मैं एक पीस आपको दिखा रहा हूँ, ये भी म्यूरल ही है लेकिन ये वुड पे नहीं है, ये पीओपी है, पूरा का पूरा पीओपी शीट्स मैंने यूज़ किए हुए हैं। अब इसको भी मुझे वुडन बेस देना है तो दे सकती हूँ मैं, इसके ऊपर भी आपको पेंटिंग करना है तो कर सकते हैं। वो सब क्रिएटिविटी आपकी है, आपको जैसे चाहिए आप कर सकते हैं। अब मैं करूँगी सिर्फ इसको पेंट। ओके, मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको पेंटिंग बताया था, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ भी पेंटिंग कर सकते हो, इसमें भी कुछ कंपल्शन है नहीं, बराबर। तो हम इसको पेंट करेंगे आज। मैं सिंपल पेंटिंग दिखाऊंगी क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चों को ड्राइंग के लिए डर लगता है वो लोग समझते हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं है। आपका ड्राइंग अच्छा है ना तो आप अच्छा करोगे ही, लेकिन ड्राइंग अच्छा नहीं है तो भी थोड़ा इंटरेस्ट लेके आप क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते। अब मैंने ना ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कलर कर लिया था तो मैं इसको, हाँ और एक बात बतानी है आपको, अगर आपके पास वुडन बेस है तो उसको पेंट करने के पहले आप उसके ऊपर, आपके पास अगर पीओपी है तो पीओपी का टेक्सचर बनाएंगे, ओके। उसके ऊपर वाइट कलर देके फिर कलरिंग करेंगे, ओके। अब मेरे पास ये पीओपी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका टेक्सचर कैसे बनाना है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको वो वाला बताया था ना, ये वाला, इससे बताया था मैंने कैसे करना था। अब मैं पीओपी टेक्सचर्स बताती हूँ आपको, ये रहा। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है फेविकॉल और पीओपी पाउडर, जिनको इजीली अगर मिल सकती है आप यूज़ कर लो। थोड़ा थिक ही बनाना है पेस्ट, ओके। पीओपी और फेविकॉल इक्वल इसमें लिया है मैंने, 2 स्पून फेविकॉल और 2 स्पून पीओपी का पाउडर, ओके। बहुत सारे ऑप्शन हैं, ज़रूरी नहीं है पीओपी पाउडर, आप फेविकॉल और रंगोली भी मिक्स करके ये टेक्सचर बना सकते हैं। अब मैं दिखा दूंगी आपको कि कैसे टेक्सचर बनाया जाता है, ओके। ये मेरा वुडन पीस है, इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया, ओके। अब आप देखोगे जैसे हम स्प्रेड करेंगे हमें एक अलग अलग टेक्सचर मिलेगा। मैं इससे स्प्रेड कर रही हूँ, नाइफ से जो मेरे पास है, कुछ भी ले सकते हैं आप, स्पून ले लो, स्पून का बैक यूज़ करो, उससे भी टेक्सचर अच्छा मिलता है। ये देखो, ये मैंने अभी टेक्सचर बना दिया, आपको दिख रहा है अच्छे से। ये जो टेक्सचर, ये भी एक टेक्सचर है ना, है ना। ये जो लाइंस आ रहे हैं ना, स्ट्रोक्स आ रहे हैं, वो भी पेंटिंग के बाद बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ये ऐसे टेक्सचर भी हो सकता है, मैं आपको अलग अलग बताती हूँ। जैसे आप अप्लाई करोगे उसका एक टेक्सचर आ जाएगा, बराबर। अब मैंने ऐसे सीधा सीधा अप्लाई किया तो उसका एक टेक्सचर मिला मुझे। हम किसी के आर्ट को बहुत ही सरप्राइज से देखते हैं, वाह कितना सुंदर बना है, लेकिन वही चीज़ अगर आप ट्राई करोगे तो मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट्स आर मोर क्रिएटिव, तो आप भी कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा, है ना, मैंने ये ऐसे ऐसे लगाया तो उसका मुझे टेक्सचर मिला, बराबर। ये टेक्सचर भी अच्छा दिख रहा है, बराबर। अब मैं इसको लाइन फॉर्म में करूँगी,
बराबर लाइन फॉर्म करूँगी तो वो भी टेक्सचर अच्छा दिखेगा। ये देखो उसके ऊपर मैंने लाइंस कर दिए, हो गया ये अलग से एक टेक्सचर। क्या है, आप आर्ट के लिए डरोगे, आप नहीं करोगे तो पेरेंट्स को भी टेंशन आएगा, अरे बाप रे सबमिशन देना है, बेटे को तो कुछ आता नहीं है। नहीं, सब क्रिएटिव है, सबको सब आता है। ये रहा, बराबर ये लाइन का टेक्सचर हो गया। अब मैं करूँगी इसको ऐसे अप्लाई। ओके, अप्लाई किया और फिर मैंने उसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा ये चेंज कर दिया, तो मुझे ये अलग से एक अलग से टेक्सचर मिला। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही करो टेक्सचर, वही करो टेक्सचर, आपको पीओपी लाना है, बिल्कुल नहीं। रंगोली तो इजीली घर पे अवेलेबल होती है, रंगोली फेविकॉल में डाल दो, उससे टेक्सचर बनाओ जो भी मिलेगा आपको, बराबर। तो ये एक टेक्सचर का पार्ट है जो आप ऐसे भी टेक्सचर बना सकते हो। ओके, तो अब इसको हम कलर करेंगे। ये मैं सूखने के लिए रखूँगी, जो मेरे पास रेडी है उसमें मैं दिखाती हूँ। तो आप ये वाला टेक्सचर बीच में बना के उसको भी कर सकते हो। देखो कितना सुंदर सुंदर पीसेस बनेंगे।